یہ بات ہے 13 جنوری سال 2012 کی، جب ایک لگژریس کروز شپ جو ٹائٹینک سے بھی زیادہ لگژریس تھی اپنے سفر کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ اس کا نام تھا کوسٹا کنکورڈیا۔ اس کو بنانے میں ٹوٹل $570 ملین کی کوسٹ آئی تھی، جس کو اگر ہم کمپیئر کریں ٹائٹینک کے ساتھ، جس کو آج کے دن کی بنانے کی کوسٹ $400 ملین ہے۔ اور اگر بات کی جائے اس جہاز کے سائز کی، تو یہ جہاز لینتھ میں 290 میٹر اور ہائٹ میں 55 میٹر تھا، جبکہ ٹائٹینک لینتھ میں 269 میٹر اور ہائٹ میں 53 میٹر تھا۔ مطلب یہ کہ یہ جہاز ہر لحاظ سے ٹائٹینک سے بہتر تھا، چاہے وہ اس جہاز کو بنانے کی کوسٹ ہو یا پھر اس جہاز کے سائز کی۔ اگر لگژریس ایبیلٹیز کی بات کی جائے تو اس جہاز میں تھا ایک فٹنس سینٹر، ساؤنا، ترکش باتھ، سولیریم، اس کے علاوہ 4 سوئمنگ پولز، 5 جکوزیز، 5 سپاس، ملٹیپل ڈائننگ آپشن، 3 لیول تھیٹر، کیسینو، بچوں کے کھیلنے کے لیے ویڈیو گیمز کا ایریا، مختلف سپورٹس کی فیسلٹیز، لائبریری، انٹرنیٹ کیفے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ۔ 12 جنوری کی رات تقریباً 7:15 پر یہ جہاز اٹلی میں موجود چیویتیواکیا سی پورٹ سے روانہ ہوتا ہے۔ اس کو چیویتیواکیا سی پورٹ سے پورے میڈیٹرینین سی میں 6 ڈیفرنٹ پورٹ سے ہوتے ہوئے دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آنا تھا، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سفر میں ٹوٹل 4229 لوگ شامل تھے، جن میں سے 3206 پیسنجرز اور 1023 کریو ممبرز تھے۔ یہ سب لوگ 40 ڈیفرنٹ نیشنلٹی سے تعلق رکھتے تھے، جن میں سے زیادہ تر لوگ فرینچ، جرمن اور اٹالین تھے۔ جہاز کے کیپٹن کا نام فرانسسکو شٹینو تھا، جو خود بھی ایک اٹالین ہی تھے۔ اپنے سفر سے روانہ ہوتے ہی یہ جہاز اپنی پہلی منزل یعنی سامونا کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، لیکن روانہ ہونے کے کچھ ٹائم بعد یہ جہاز اپنے ایکچوئل روٹ سے باہر نکل جاتا ہے اور اپنے پاس ہی میں موجود اٹلی کے گیگلیو آئلینڈ کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کوئی غلطی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ دراصل اس جہاز کے کیپٹن یعنی فرانسسکو شٹینو ایک ٹائم پر اپنے سے سینئر کیپٹن ماریو پلومبو کے انڈر کام کرتے تھے، اور یہ ماریو پلومبو اسی آئلینڈ یعنی گیگلیو پر رہتے تھے۔ تو کیپٹن شٹینو اپنے کیپٹن ماریو پلومبو کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے آئلینڈ کے پاس سے ہی گزر رہے ہیں اور ہم آپ کو ایک ٹریبیوٹ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن کیپٹن پلومبو اس ٹائم پر کسی کام کے چلتے اس آئلینڈ سے باہر گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ٹریبیوٹ نہیں مل پاتا۔ اس ٹائم پر یہ جہاز آئلینڈ کے اتنا پاس آ جاتا ہے کہ جہاز اور آئلینڈ کے درمیان صرف 95 میٹر کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ کسی بھی لینڈ کے آس پاس والا سمندری ایریا زیادہ گہرا نہیں ہوتا، اور ان ایریا میں سمندر کے صرف کچھ میٹر نیچے ہی بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کوسٹا کنکورڈیا جیسے بڑے بڑے جہازوں کے چلنے کے لیے پانی کا گہرا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور عام طور پر کوسٹا کنکورڈیا جیسے بڑے بڑے جہاز لینڈ کے کافی فاصلے پر ہی چلتے ہیں۔ لیکن اس کیس میں جہاز کا کیپٹن اس چیز کی پرواہ کیے بغیر جہاز کو آئلینڈ کے اتنا پاس لے جاتے ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا ڈر تھا۔ رات کے تقریباً 9:45 پر یہ جہاز ایک چٹان کے ساتھ بہت برے طریقے سے ٹکرا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس جہاز کے حل میں 50 میٹر لمبا گڑھا پڑ جاتا ہے۔ جہاز میں موجود لوگوں کو ایک زوردار آواز سنائی دیتی ہے، اور جہاز کے چٹان کے ساتھ ٹکرانے سے لائٹس بھی بند ہو جاتی ہیں۔ مختلف چیزیں جو ٹیبل وغیرہ پر پڑی ہوئی تھی وہ ٹیبل سے گرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ جہاز اب ایک سائڈ پر ٹلٹ ہونا شروع کر دیتا ہے۔ چٹان کے ساتھ ٹکرانے سے اس جہاز کے 5 کمپارٹمنٹس میں انسٹنٹلی پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے، جن میں سے ایک جہاز کا مین یعنی انجن روم بھی تھا۔ ٹکرانے کے کچھ ٹائم بعد ہی جہاز کے چیف انجینئر جہاز کے ایمرجنسی ڈیزل کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ناکام رہ جاتے ہیں۔ ٹکرانے کے بعد بھی یہ جہاز رکا نہیں تھا، بلکہ آگے چلتا ہی جا رہا تھا اور آئلینڈ سے دور ہو رہا تھا۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جہاز کے کیپٹن شٹینو فیصلہ لیتے ہیں کہ جہاز کے رخ کو آئلینڈ کی طرف کیا جائے، تاکہ اگر جہاز ڈوب بھی جاتا ہے تو آئلینڈ کے پاس ڈوبنے میں زیادہ فائدہ ہے سمندر کے اندر ڈوبنے کی نسبت۔ جہاز میں موجود پیسنجرز کو یہی بتایا جاتا ہے کہ جہاز میں صرف ایک بلیک آؤٹ ہوا ہے اور ہم اسے کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ سچ بات تو یہ تھی کہ یہ پورا جہاز ہی فیل ہو چکا تھا۔ کچھ پیسنجرز پینک سچویشن میں آ کر لوکل پولیس کو فون کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک کوسٹ گارڈ جہاز میں کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پیسنجرز ہمیں مختلف پرابلمس رپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ آخر جہاز میں چل کیا رہا ہے۔ لیکن جہاز کے کیپٹن سچ بولنے کی بجائے ان سے بھی وہی جھوٹ بولتے ہیں جو انہوں نے پیسنجر سے بولا تھا، یعنی کہ جہاز میں بلیک آؤٹ ہو گیا ہے، حالانکہ یہ جہاز اب چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اب اس جہاز کو ٹکرائے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن کوئی بھی پراپر ایکشن نہیں لیا گیا تھا
पैसेंजर्स की जानों को बचाने के लिए। टकराने के तकरीबन 40 मिनट बाद कोस्ट गार्ड के दोबारा कॉल आती है शिप में, लेकिन इस बार कैप्टन शेटिनो सोचते हैं कि आखिर कब तक झूठ बोलेंगे। हमारे झूठ बोलने से ये जहाज डूबने से तो रुक नहीं सकता। इसलिए कैप्टन शेटिनो ऑर्डर देते हैं कि कोस्ट गार्ड को सब कुछ सच सच बता दिया जाए कि हमें एक फेलियर का सामना है और हमें टग बोट्स की ज़रूरत है। इसी के साथ जहाज़ के क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स को लाइफ जैकेट्स देना भी शुरू कर देते हैं। तकरीबन 10:33 पर एक इमरजेंसी अलार्म रेज किया जाता है और पैसेंजर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि मस्टर स्टेशन पर इकट्ठे हो जाए और बाकी इंस्ट्रक्शंस का इंतज़ार करें। मस्टर स्टेशन बेसिकली एक एरिया होता है जहाज़ में जहां तमाम क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स इकट्ठे होते हैं इमरजेंसी के टाइम पर, और यहीं से शिप को अबैंडन करने की प्रिपरेशन की जाती है। कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करने के तकरीबन 15 मिनट बाद पहली रेस्क्यू वेसल भी जहाज़ के पास पहुंच जाती है। 10:48 हो चुके हैं और ये जहाज़ 30 डिग्री तक टिल्ट हो गया है। तकरीबन टकराने के 1 घंटे बाद फाइनली कैप्टन शेटिनो ऑर्डर देते हैं कि जहाज़ को अबैंडन किया जाए, लेकिन कैप्टन के ऑर्डर देने से पहले ही कुछ क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में बिठाना शुरू कर देते हैं हालात को समझते हुए। तकरीबन 10:55 पर पहली लाइफ बोट उतारी जाती है पानी में। क्योंकि ये जहाज़ 30 डिग्री तक टिल्ट हो गया था और टिल्ट होता ही जा रहा था, इसलिए लोगों को रेस्क्यू करने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम की तरफ से हेलीकॉप्टर्स वगैरह को भी भेजा जाता है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जहाज़ आइलैंड के काफ़ी पास था, इसलिए जिन लोगों को तैरना आता था वो पानी में कूद जाते हैं और तैर कर आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं। 11:09 पर जहाज़ के कैप्टन शेटिनो खुद ही जहाज़ को छोड़कर बाकी लोगों के साथ भाग जाते हैं बगैर पैसेंजर्स की परवाह किए, जबकि उन्हें चाहिए ये था कि वो पैसेंजर्स की हेल्प करते उन्हें रेस्क्यू करने में। जहाज़ को टकराए हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं और अभी भी 300 से ज़्यादा लोग इस जहाज़ में फंसे हुए हैं। तकरीबन रात के 12:42 पर कोस्ट गार्ड के कैप्टन जॉर्जियो डी फैल्को जहाज़ के कैप्टन यानी शेटिनो को कॉल करते हैं और उन्हें गुस्से से कहते हैं कि जहाज़ पर वापस आओ और हमें लोगों के बारे में इन्फॉर्म करो ताकि हम उन्हें रेस्क्यू कर सकें। लेकिन हमारे प्यारे कैप्टन शेटिनो साहब बहाने लगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मैं जहाज़ पर वापस नहीं आ सकता, मुझे ये मसला है, मुझे वो मसला है। इसी के चलते आज के दिन उन्हें कैप्टन फॉरवर्ड यानी बुज़दिल कप्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये रेस्क्यू मिशन अगले कई हफ्तों तक चलता है और आखिरी पैसेंजर जो कोस्टा कॉन्कोर्डिया से रेस्क्यू किया जाता है, इसका नाम था मानरिको गियाम्पेट्रोनी, जिन्हें 2 दिन बाद रेस्क्यू किया जाता है। ये जहाज़ के क्रू मेंबर थे जिनके जहाज़ के डूबने के दौरान पैसेंजर्स की हेल्प करते हुए टांग टूट गई थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद को डूबने से बचाए रखा जब तक कि रेस्क्यू टीम ने इन्हें ढूंढ नहीं लिया। इस हादसे में टोटल 32 लोगों की जान जाती है, जिनमें से 27 पैसेंजर्स, 4 क्रू मेंबर और 1 रेस्क्यूअर शामिल था। पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के बाद अगला मसला था इस जहाज़ को दोबारा रिपेयर करने का, लेकिन जब इंजीनियर्स इस जहाज़ को देखते हैं तो कहते हैं कि इस जहाज़ को दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता, ये टोटली वेस्ट हो चुका है, अब सिर्फ इसे डिसमेंटल ही किया जा सकता है। लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं था। इस काम को करने में एक्सपर्ट्स को 5 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सबसे पहले तो इस जहाज़ में मौजूद पेट्रोल को निकालने का काम किया जाता है। ये इसलिए ज़रूरी था ताकि आने वाले टाइम में किसी भी गलती की वजह से ये पेट्रोल पानी में शामिल ना हो जाए, जिसकी वजह से जानदारों को नुकसान हो। इस जहाज़ में टोटल 1.9 मिलियन लीटर पेट्रोल था, वो इसलिए क्योंकि ये जहाज़ फुली लोडेड होकर अपनी मंजिल से निकला था और अभी इसे सिर्फ 2 घंटे ही हुए थे अपनी मंजिल से निकले हुए। इस काम को करने में वर्कर्स को 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये काम शुरू किया जाता है 12 फरवरी को और 24 मार्च को ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। पेट्रोल निकालने के बाद अब बारी थी इस जहाज़ को सीधा करने की। ये करने के लिए पहले तो पानी की तह में एंकर्स को फिक्स किया जाता है और इसको स्ट्रॉन्ग केबल की मदद से जहाज़ के हल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। वो इसलिए ताकि इस जहाज़ को सीधा करने के दौरान यह जहाज़ फिसल ना जाए। इसके बाद एक अंडर वाटर प्लेटफॉर्म बनाया जाता है ताकि जहाज़ को सपोर्ट मिल सके सीधा होने के बाद। फिर जहाज़ के अपर साइड पर 15 बड़े बड़े बॉक्सेस लगाए जाते हैं जिन्हें कैसन्स भी कहते हैं। इन कैसन्स को पुलिंग केबल के जरिए प्लेटफॉर्म से कनेक्ट किया जाता है और फिर इन कैसन्स में पानी भरा जाता है ताकि सीधा करने के दौरान ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल ना हो। अब फाइनली इस जहाज़ को सीधा करने का काम शुरू किया जाता है। इसको करने में टोटल 19 घंटे लग जाते हैं और फाइनली ये जहाज़ सीधा हो जाता है। अब इस जहाज़ को फ्लोट करने के लिए पहले तो इन कैसन्स में मौजूद पानी को बाहर निकाला जाता है और दूसरी साइड पर भी 15 ऐसे ही कैसन्स को लगाया जाता है और फिर इन कैसन्स में हवा को भरा जाता है जिससे ये जहाज़ फ्लोट करने लग जाता है और फिर इस जहाज़ को टग बोट्स की मदद से पास ही में मौजूद गेनुआ पोर्ट की तरफ लेकर जाया जाता है।
जहां इसे डिसमेंटल करने का काम शुरू किया जाता है। इसे डिसमेंटल करने में टोटल 3 साल लग जाते हैं। ये काम जुलाई 2014 से जुलाई 2017 तक चलता है, जिसमें टोटल 350 वर्कर्स काम करते हैं। इस हादसे का केस जब कोर्ट में चलता है तो कंपनी हर एक पैसेंजर को उसके टिकट के पैसे तो वापस करती ही है और साथ में 11,000 यूरो यानी तकरीबन $14,500 भी देती है, ताकि जो सामान पैसेंजर्स का लॉस्ट हुआ है इस हादसे में उसको कवर अप किया जा सके। और इसके अलावा जिन पैसेंजर्स के रिलेटिव्स इस हादसे में मर जाते हैं उनको भी एक डिस्क्लोज अमाउंट ऑफ मनी दी जाती है। अब अगर बात करें हमारे प्यारे कैप्टन साहब की, तो हमारे प्यारे कैप्टन साहब वहां पर भी बहाने लगाने से बाज नहीं आते। पहले तो अपना कसूर जहाज के एक फर्स्ट ऑफिसर सिरो एम्ब्रोसियो पर लगाते हैं। वो इस तरह के जब जहाज आइलैंड के पास से गुजर रहा था तो कैप्टन शेटिनो ने सिरो एम्ब्रोसियो को इंस्ट्रक्शन दी थी कि जहाज को लेफ्ट की तरफ मूव करो, लेकिन सिरो एम्ब्रोसियो ने जहाज को गलती से राइट की तरफ टर्न कर दिया और अगले 10 सेकंड तक जहाज राइट की तरफ ही जाता रहा। फिर 10 सेकंड बाद इसे दोबारा लेफ्ट की तरफ किया जाता है। लेकिन इतने बड़े डिजास्टर के पीछे सिर्फ इस एक गलती को वजह नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा जब कैप्टन शेटिनो से पूछा गया कि तुम जहाज को पहले ही छोड़कर क्यों भाग गए थे, तो कैप्टन शेटिनो ने बहाना लगाया कि क्योंकि जहाज काफी टिल्ट था, जिसकी वजह से मेरा पाँव फिसला और मैं लाइफ बोट में जाकर गिर गया। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस बात को बिल्कुल ही इलॉजिकल समझते हुए उन पर मैनस्लॉटर यानी कत्ले आम का इल्ज़ाम लगाया और उन्हें 16 साल की सज़ा सुनाई, जिसकी वजह से वो आज भी जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। कैप्टन शेटिनो के अलावा जहाज़ के फर्स्ट ऑफिसर सिरो एम्ब्रोसियो को 2 साल और 10 माह की सज़ा सुनाई जाती है और 2 मजीद लोगों को 2 साल और 6 माह की सज़ा सुनाई जाती है। और यहीं पर अंत होता है हमारी आज की इस वीडियो का। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलूँगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।